Sure. Okay, let us proceed. Take question number 5 on page number 22. Question 5 and question 6. ये दो क्वेश्चन हमको करने हैं. Let us quickly start question number 5. Very similar question has been asked in examination. Almost same. Institute has already asked this in one of the exam. Okay, I am reading the question. DFG Limited manufactures leather bags for office and school purpose. The following information is related with production of leather bags. So what is leather bags for the company? Finished goods. For the month of September 2019. Leather sheets and cotton cloth are main input. What is meaning of input? Raw materials. So यहाँ पे how many raw materials are there? 2. What are 2 raw materials here? Leather sheets and cotton cloth are main input. The estimated requirement per bag. This is estimated requirement per bag. See, best way to understand any question, खुद के मदर टंग में उसको कन्वर्ट करने का. That is best way to understand. Per bag मतलब एक बैग को बनाने के लिए कितना मीटर्स चाहिए? किसका? लेदर शीट. एक बैग बनाने के लिए 2 मीटर्स ऑफ लेदर शीट एंड 1 मीटर ऑफ कॉटन क्लॉथ. तो एक बैग बनाने का रहेगा तो 2 मीटर्स ऑफ लेदर शीट एंड 1 मीटर ऑफ कॉटन क्लॉथ. एंड आई ऑलरेडी डिस्कस्ड लेदर शीट्स एंड कॉटन क्लॉथ, ये दोनों क्या है? रॉ मटेरियल. तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए? ये ऐसा बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा. तो यू हैव टू गेट यूज्ड टू द लैंग्वेज. सी, अकाउंटिंग का लैंग्वेज यू आर ऑलरेडी यूज्ड टू. डेबिट, क्रेडिट, एसेट, लायबिलिटी, ये वो खाली नए टर्म्स आएंगे. ओनली थिंग इज अभी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को बोलेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो लाइक फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट का नया वर्ड नहीं है तुम्हारे लिए. इन्वेस्टमेंट को तुम करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जस्ट क्लासीफाई कर रहे हो. तो लैंग्वेज इज नॉट न्यू, बट यहाँ पे ये सब लैंग्वेज तुमको कंटिन्यूअसली आएगा. सो 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड रिक्वायर हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब तुमको क्लिक होना चाहिए क्विकली. सो 1 बैग रिक्वायर्स 2 मीटर्स ऑफ लेदर शीट्स एंड 1 मीटर ऑफ कॉटन क्लॉथ. 2000 meters of leather sheets and 1000 meters of cotton cloth were purchased at 3,20,000 and 15,000 respectively. Freight paid on purchase is 8,500. This was number 1. Number 2, stitching and finishing need 2,000 man hours. ये 2000 man है कि hours है? Man hours. What is meaning of man hours? मतलब ये नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू नंबर ऑफ आवर्स है. आर यू गेटिंग द डिस्कशन? ओके. एट ₹80 per hour. Direct labor cost is, sorry, other direct cost of ₹10 per labor hour is incurred. DFG has 4 machines at total cost of 22 lakh. Machine has life of 10 years. ये थोड़ा सुना सुना लग रहा है. That we have heard. And a scrap value of 10% of original cost. ये भी हमको थोड़ा बहुत सुना हुआ लग रहा है. डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, ये भी हमने सुना हुआ है. मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स ऑफिस स्टाफ इज 45,000 and 72,000 respectively. कंपनी pays 1,20,000 per month as rent for 2,400 square feet factory premises. Administrative and sales office occupy 240 square feet and 200 square feet respectively of the factory space. तो factory space के अंदर ही administrative office है which is occupying 240 square feet and 200 square feet is occupied by sales office. Factory के अंदर ही. Freight paid on delivery of finished bags is 18,000. During the month 35 kgs of leather and cotton cuttings are sold at 150 per kg. There is no opening closing stock for input raw materials or input materials. There is 100 bags in stock at the end of the month. This is stock of what? Finished goods. How did you come to know this is
stock of finished goods because there is 100 bags and you can see हम लोग ने पहले ही देखा है कि their company is producing leather bags. Okay. Now ये question पढ़ के they are asking us to prepare cost sheet for the month of September 2019. Only one question you have to answer. क्या finished goods, ये question में finished goods क्या है? Leather bags. Is finished goods का quantity related information given? Yes. Which is that information that is given? Because if you remember last question that we solved, उसमें चार था. एक था ओपनिंग स्टॉक, एक था प्रोडक्शन, एक था सेल्स और बाद में हमने क्लोजिंग स्टॉक ढूंढा था. तो ये क्वेश्चन में फिनिश्ड गुड्स से रिलेटेड which information is given in units? Closing stock. Closing stock is how many bags? Okay. Can you tell me how many leather bags are produced in the month of September? September में how many leather bags were produced? 1,000 leather bags were produced. Okay, is it given or it is to be calculated? How did you calculate? 1,000 leather bags were produced. 2,000 meters of leather sheets. By the way, leather sheets is raw material के finished goods. तो रॉ मटेरियल का इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है. 2000 मीटर्स दिया हुआ है यहाँ पे ऑफ लेदर शीट्स. ओके, फिर 1000 मीटर्स ऑफ कॉटन क्लॉथ. तो अदर रॉ मटेरियल का भी हमको यूनिट्स या मीटर्स दिया हुआ है. ओके, विद दैट 1 बैग बनाने के लिए वी रिक्वायर 2 मीटर्स ऑफ लेदर शीट. तो 2000 मीटर्स ऑफ लेदर शीट्स में कितने बैग्स बने रहेंगे? 1000. डू यू एग्री विद दिस? सो व्हाट इज द मैथमेटिक्स? 2000 डिवाइडेड बाय 2. टेक्निकली यू आर रॉन्ग बिकॉज वो 2000 मीटर्स है ना, वो लेदर शीट्स परचेस्ड है. हमको चाहिए कंज्यूम्ड. एक्चुअली तो क्या लेना चाहिए? लेदर शीट्स कंज्यूम्ड. बट वो लोग ने 8th पॉइंट में लिखा हुआ है देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ऑब्वियसली सपोज अगर वो लोग ने बोला रहता कि 200 मीटर ऑफ लेदर शीट्स आर नॉट कंज्यूम, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में है, तो 1800 डिवाइड बाय 2, इन दैट केस 900 बैग्स आर प्रोड्यूस्ड. यस, ऑब्वियसली. तो टेक्निकली आप जो कैलकुलेट कर रहे हो उसमें कंज्यूम्ड ले रहे हो कि परचेस्ड ले रहे हो? कंज्यूम. वो बात अलग है. ये क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू रॉ मटेरियल परचेज बिकॉज देर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ऐसा मैं नहीं क्वेश्चन बोल रहा. ओके, सो करेक्ट, 1000 बैग्स वर प्रोड्यूस्ड. चलो हम लोग मान के चलते हैं. आउट ऑफ विच हाउ मेनी बैग्स आर रिमेनिंग अनसोल्ड? मतलब क्लोजिंग स्टॉक में कितना है? 100. मतलब कैन वी से 900 बैग्स वर सोल्ड? यस और नो? या इज देयर एनी ओपनिंग स्टॉक ऑफ लेदर बैग्स? लेदर बैग्स इज फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स का कोई ओपनिंग स्टॉक है क्या? नहीं. और ऐसा कोई हिंट भी हमको लग नहीं रहा है. सो वी आर बिलीविंग कि लेदर बैग्स का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है. बट डेफिनेटली हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड? 1000 leather bags are produced, out of which 100 bags are in closing stock. तो 900 bags are sold. तो ऑफ कोर्स इसका पूरा हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि कहीं भी हम लोग को 1000 बैग्स का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, वी हैव टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट. सो कैन यू टेल मी फॉर्मेट क्या होना चाहिए? और एल्स आई विल आस्क यू इन डिफरेंट मैनर. डू वी हैव टू प्रिपेयर एक्स्ट्रा कॉलम्स? यस. तो पर्टिकुलर्स टोटल रुपीज तो बनेगा ही. यहाँ पे पर यूनिट की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे? पर बैग. और यहाँ पे फिनिश क्वांटिटी लिखा है इन यूनिट्स. यूनिट्स की जगह पे क्या लिखेंगे? बैग्स. तो राइट डाउन. चलो प्रिपेयर द फॉर्मेट कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2019. ओके, बी फास्ट.
cost sheet for the month of September 2019. Very similar format that we have done in the previous question. Only instead of units, you are supposed to write bags. Okay, do you recollect last question? I told you that finished quantity column should start with which units या which bags produced. How many bags are produced? ये दिया हुआ है या हमने कैलकुलेट किया हुआ? हमने कैलकुलेट किया हुआ, इसके लिए हमको नोट बनाना पड़ेगा. तो नेक्स्ट टाइम ब्रैकेट में लिख दो नोट 1. ये नोट हम कॉस्ट शीट बनने के बाद बनाएंगे. How many raw materials are there in this question? Okay, now if you remember question 1, question 2, question 3 and even question 4 that we solved, everywhere we calculated raw material consumed. But for calculating raw material consumed, we have taken opening stock plus purchase minus closing stock. But ये question में raw materials का क्या नहीं है? Opening closing stock. So हम लोग directly लिख रहे हैं direct materials. Even if you write direct material consumed, that is not wrong, but हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं direct materials. Okay, बोलो which are the two direct material? Which is the first one? Leather sheets. And how many meters of leather sheets were purchased? 2000. बट हम लोग को तो रुपीस चाहिए, तो हम लोग ने कितने में परचेज किया है? 3,20,000. ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो डायरेक्ट 3,20,000 इनर कॉलम में. सिमिलरली कॉटन क्लॉथ्स which is second raw material, and what is the amount? 15,000. Should I take the total to outer column? Should I take the total to the outer column? No. क्यों no? Freight on purchase है, तो ये 335 लिखो. नेक्स्ट लाइन लिखो ऐड freight on purchases 8,500. After this stop writing. Can you tell me हम लोग क्या क्या माइनस करते हैं? परचेस रिटर्न. डू यू हैव परचेस रिटर्न? नो. डू यू हैव क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? नो. और एक चीज हम लोग माइनस करते हैं, इफ यू रिमेंबर, सेल ऑफ विच स्क्रैप? raw material scrap. Is there any sale of raw material scrap? क्या ये क्वेश्चन में कोई स्क्रैप है क्या? पहले वो बताओ. ये क्या है? पॉइंट नंबर 7. इज दिस पॉइंट नंबर 7 सेल्स के इज इट सेल ऑफ स्क्रैप? सेल ऑफ स्क्रैप. तो इज दिस सेल ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप? बिकॉज अगर ये सेल ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप है तो इधर माइनस करना पड़ेगा, और अगर ये सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप है तो नीचे माइनस करना पड़ेगा फैक्ट्री कॉस्ट में से. आई होप यू रिमेंबर द प्लेसिंग. हाँ, तो ये कौन सा स्क्रैप है और कैसे पता चलेगा? इज इट रॉ मटेरियल स्क्रैप?
क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और बहुत जन इधर रॉ मटेरियल में से माइनस करके आए, और जो लोग रॉ मटेरियल में से माइनस करके आए उनको जीरो मिलेगा, क्योंकि दिस इज नॉट रॉ मटेरियल स्क्रैप, दिस इज फैक्ट्री स्क्रैप, बिकॉज वो लोग ने वर्ड यूज किया है कटिंग्स। यस और नो? मतलब लेदर शीट्स एंड कॉटन कटिंग्स, वो लोग ने लेदर शीट्स को कट किया, देखो कट करने के बाद जो बच गया उसको वो लोग कटिंग्स बोलते हैं, दैट इज फैक्ट्री स्क्रैप। दिस इज द स्क्रैप विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम ये फैक्ट्री स्क्रैप जनरेट हुआ है, जो वो लोग ने 35 kgs 150 रुपीज में बेचा है, तो दिस इज नॉट रॉ मटेरियल स्क्रैप। देयर इज नो अजम्पशन, दिस इज क्लियर कट फैक्ट्री स्क्रैप। मतलब बाय राइटिंग assumption you cannot convert something which is wrong into right। बोला हमारे लिए ये रॉ मटेरियल स्क्रैप है, दैट इज रॉन्ग। चलो हो गया, ये दोनों का टोटल करो 343। ओके, हियर डिवीजन इज गोइंग टू बी सिंपल। ये 343 500 डायरेक्ट मटेरियल इज फॉर हाउ मेनी बैग्स? 1000। सो मुझे पर बैग कन्वर्ट करना है, तो 343.5। ओके, दैट इज वेरी सिंपल। Okay, next one is direct employee cost. You can also write direct labor, you can also write direct wages, direct employee cost, underline that। Okay, which point we should refer for direct employee cost? क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट रेफर करना है? एक चीज एक ही बार पूछा जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं है एक ही चीज दो दो बार पूछने के लिए। विच पॉइंट वी शुड रेफर? अरे वन में तो रॉ मटेरियल के बारे में दिया है ना, जब पढ़ते रहेंगे ना क्वेश्चन चाहिए तो तभी लिख देने का कि ये डायरेक्ट मटेरियल के बारे में है, ये डायरेक्ट लेबर के बारे में, अदर डायरेक्ट कॉस्ट मतलब ये किसके बारे में है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में है, एंड सो ऑन, ऐसा करके तभी लिख देने का। डायरेक्ट लेबर स्टिचिंग एंड फिनिशिंग नीड 2000 मैन आवर्स एट 80 रुपीज पर आवर। सो लिखा नेक्स्ट लाइन स्टिचिंग एंड फिनिशिंग। बोलो स्टिचिंग एंड फिनिशिंग हाउ मेनी मैन आवर्स? 2000 मैन आवर्स इंटू 80 रुपीज पर आवर। देखो ये मैन आवर्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास 10 वर्कर हैं, एक वर्कर 25 दिन काम करता है, एंड 8 आवर्स पर डे। कितने वर्कर हैं? 10। अच्छा, एक वर्कर कितना दिन काम करेगा? 25। करो कैलकुलेटर पे, 25 पर डे 8 आवर्स आने का फैक्ट्री में, तो इंटू 8 कितना हुआ? ये 200 इज फॉर हाउ मेनी वर्कर्स? 1। ऐसे मेरे पास कितने वर्कर हैं? तो इंटू 10, तो हो गया 2000 मैन आवर्स। और एक वर्कर को कितना मिलता है, या सॉरी पर आवर कितना मिलता है? तो इंटू 80, ये मेरा वेजिस हो गया। मेरे को तो टोटल 2000 आवर्स का पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो कितना होता है? 1,60,000 again divided by 1000 is 160। चलो next one, do we have direct expenses in this question? Yes, we have discussed it। direct expenses, underline that। next line लिखो other direct cost। ओके, हाउ मच इज अदर डायरेक्ट कॉस्ट? 10। तो ये 10 हम लोग इधर लिख दें पर कॉलम में। ये 10 रुपीज क्या है पर? हाँ, लेकिन आगे लेबर आवर्स दिया ही नहीं है, यही है ना 2000 लेबर आवर्स। ओके, ये अदर डायरेक्ट कॉस्ट 10 रुपीज पर लेबर आवर, तो 2000 इंटू, तो नीचे बनाओ ब्रैकेट 2000 आवर्स इंटू रुपीज 10 पर आवर।
Okay, so now in the last column we have three amounts. We will add that. After adding, what do we get? कितना है टोटल? 5,23,500. That is 523.5. So prime cost में we will now add which overheads? Factory. इसको underline करो. Can you check how many factory overheads are there in this question? Go point wise. चलो point number 4 से क्या मिलेगा हमको? On is depreciation on machines factory overheads. Can you calculate depreciation and give me depreciation? They have told depreciation is to be charged on straight line method. I hope you remember straight line method. Straight line method में कुछ तो formula था depreciation calculate करने का. What was that formula? Cost minus scrap value divided by useful life. तीनों दिया है तुमको. तो can you calculate depreciation जो cost sheet में आएगा? 1,98,000 is wrong. कॉस्ट शीट में 1,98,000 नहीं आएगा. तुमने जो 1,98,000 कैलकुलेट किया ना, दैट इज डेप्रिसिएशन पर एनम. और कॉस्ट शीट हम बना रहे हैं फॉर अ मंथ. डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा ना हम लोग को. बोलो कितना है ये? 16,500 एक मशीन का है कि चारों मशीन का मिला के? वो कैसे पता चला? क्लियरली दिया हुआ है. टोटल कॉस्ट ऑफ 22 लाख मतलब चारों मशीन का मिला के है. राइट डाउन नेक्स्ट लाइन. डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स ब्रैकेट में लिखो नोट 2. नोट 2 क्यों? नोट 1 किधर गया? और 1000 बैग्स नोट 1 में कैलकुलेट करना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स नोट 2. बोलो व्हाट इज द अमाउंट दैट वी कैलकुलेटेड? 16,500. पुट इट इन द इनर कॉलम. ओके, नाउ read point number 5 and check, do you find any factory overheads in that paragraph? Bolo, how much is monthly rent? 1,20,000. 1,20,000 is for total how much area? 2,400 एरिया का बाइफर्केशन क्या है? 240 स्क्वायर फीट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है. 200 स्क्वायर फीट है वो सेल्स ऑफिस है. तो बाकी कितना एरिया बचता है? 1960 में क्या है फिर? फैक्ट्री. फैक्ट्री है 1960. तो प्रोपोर्शनेट फैक्ट्री वाला रेंट यहां पे आएगा. तो बोलो व्हाट इज द मैथमेटिक्स? 1,20,000 इंटू या अपॉन 2,400 इंटू 1960. यस और नो? ये जो अमाउंट आया इज इट फॉर अ मंथ? कॉस्ट शीट हम लोग एक मंथ का बना रहे हैं ना. तो ये जो अमाउंट है इज इट फॉर अ मंथ? वाई? 1,20,000 मंथ का ही है. ये 1,20,000 पर एनम होता तो इसको डिवाइड बाय इसको भी करना पड़ता. डिवाइड बाय 12. ओके, राइट ऑन नेक्स्ट टाइम फैक्ट्री रेंट ब्रैकेट में लिखो नोट 3. फैक्ट्री रेंट ब्रैकेट लिखो नोट 3. व्हाट इज अमाउंट दैट यू गॉट? 98,000. Okay, total, take the total to the outer column. 16,500 plus 98,000. Bolo, what is the amount? $1,14,500. That is 114.5. I want only total of this rupees column. इन दोनों का टोटल करो. चलो बी फास्ट बताओ. 6 लाख
638,000. We say this is 638. ओके, नाउ स्टॉप राइटिंग. इसके सामने नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं? उसके बाद क्या आता है? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. डू वी हैव ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन दिस क्वेश्चन? नो. सो दिस विल डायरेक्टली बी कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट. ग्रॉस वर्ड कब लिखोगे? जब ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है. अभी वर्क इन प्रोग्रेस ही नहीं है तो डायरेक्टली इसको हम क्या बुलाएंगे? फैक्ट्री कॉस्ट. On those who are left with one line, go to next page. I don't think ऐसा कुछ सिचुएशन रहेगा. चलो, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या क्या आता है? फॉर्मेट याद करो. बोलो नेक्स्ट क्या आना चाहिए? क्वालिटी कंट्रोल. डू वी हैव क्वालिटी कंट्रोल? नो. रिसर्च एंड डेवलपमेंट? नो. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन? नो. सेल ऑफ स्क्रैप? यस, सेल ऑफ स्क्रैप है ना वहां पे. What we have sold, if you remember, यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है that 35 kgs of leather and cotton cuttings were sold. तो लिखो नेक्स्ट लाइन लेस. Realizable value of leather and cotton cuttings. नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में कैलकुलेशन करो. 35 kgs इंटू ₹150 पर kg. बोलो अमाउंट कितना है? 5,000. 5250. ओके. पर यूनिट कैलकुलेट करो उसका. डिवाइडेड बाय 1000. 5.25. Of course, it is to be subtracted. And now I can total because there is no primary packing cost. इसको माइनस करना है. टोटल करो. $6,38,000 माइनस 5250. बोलो कितना होता है? 632. So this is 632.7. बोलो as per cost sheet this is called as what? Cost of production. And if you remember at this stage हम वो 1000 bags को नीचे लेके आएंगे. ओके, नाउ दिस इज फेयरली सिंपल एज कंपेयर टू लास्ट क्वेश्चन. बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद नॉर्मली क्या आता है? सो डू वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ लेदर बैग्स? नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. बट वी हैव विच स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. लेस करेंगे हम लोग. बोलो हाउ मेनी bags are there in closing stock? 100. लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा हम लोग ने. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने के लिए सबसे पहले हमको क्या अज्यूम करना पड़ेगा? फीफो. अब ये क्वेश्चन में क्या फीफो एंड क्या वेटेड एवरेज, क्योंकि ये जो 100 बैग्स बचा है वो ये 1000 में से ही बचा होगा. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट इट शुड बी वैल्यूड एट विच कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो 1000 बैग्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बैग कितना है? 632.5. तो ये 100 का भी 632.5 632.75 ही होगा पर बैग. Those 1000 leather bags which the company manufactured, उसका cost of production is 632.75 per bag. उसमें से ही 100 bags बच गए तो उसका भी वही होगा. That is 63,275. तो बाकी के जो 900 bags बचे, that is sold.
So we are finding out cost of goods sold. Well, how much? 5 lakh 69,000. And if you want, you can divide. इसमें भी 632.75 ही आएगा. Yes or no? ये 632.75 इधर टोटलिंग लाइन नहीं होना चाहिए. दैट इज रॉन्ग. डोंट पुट टोटलिंग लाइन बिकॉज मैथमेटिकली ये इसका एडिशन नहीं, ये टोटलिंग लाइन गलत है यहाँ पे. चलो नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद प्रोसीड फर्दर. बोलो विच ओवरहेड्स नाउ? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स व्हाट? जनरल. सो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन ऐड administrative overheads general, underline that. See, if you don't buy at the cost sheet format, you will struggle in the format. अगर आगे के issues तुम फोकस ही नहीं कर पाओगे तो उसके लिए फॉर्मेट बैक होना चाहिए. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल. चलो विच एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड? आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड पॉइंट नंबर 1 2 3 4. फिफ्थ पॉइंट में can you find there are how many administrative overheads? 2. Which are those two? एक तो ये है cost of administrative office staff. So write down cost of administrative office staff. Cost of administrative office staff. Inner column 45,000. And there is one more. What is that? कौन सा rent? Administrative office rent. So write down. Administrative office rent. फिलहाल कैलकुलेटर पे कर दो बिकॉज वी आर एनीवेज गोइंग टू प्रिपेयर वर्किंग नोट. बोलो कितना है? 12,000. यस, बिकॉज इट इज 1,20,000 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 2,400. करेक्ट. 12,000. So 45,000 plus 12,000. Total this in the outer column 57,000. Calculate per bag. Now be careful. 57,000 will be divided by how many bags? 900. So divide करो. 63.33. चलो immediately next line add selling and distribution overheads. अंडरलाइन दैट. जो दो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में लिखा है ना वही सेम सेल्स में भी है. कैन यू सी दैट? तो पहले लिखो कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफिस स्टाफ. कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफिस स्टाफ. हाउ मच इज दैट? डिड यू वेरीफाई ये 45,072 मंथली है कि नहीं? Yes, it is given monthly cost. So cost of sales office staff 72,000. Inner column. What is next? Sales office rent. Next 10,000. Don't total. There is one more. Anybody? What is that? Freight on delivery of finished bag. So write down freight on
delivery of finished bags. $18,000. चलो इसका टोटल करो. 1 lakh will again be divided by 900. How much is that? 111 point. Total कर दो. That is cost of sales. Cost of sales. Okay, what is the total? 7 lakhs. Okay, per unit. 807.19. ओके, इसके नीचे लिखो नोट्स या वर्किंग. सबसे पहले फर्स्ट वर्किंग में व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट? 1000 बैग्स ना, तो लिखो नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ leather bags. Calculation of number of leather bags produced during September 2019. Underline that. Next line, write down. It is given that comma next line में लिखो. Okay, now you have to copy 3 statements from the question. पहले estimated requirement per bag, ये कॉपी करो पहले. This you have to copy. Second, next line में you have to copy this. First line में you will write estimated requirement per bag is 2 meters of leather sheets and 1 meter of cotton cloth. Next line में तुम लिखोगे 2000 meters of leather sheets and 1000 meters of cotton cloths are purchased. And और एक line में तुमको लिखना है there is no opening closing stock for input materials. This line may not have relevance, but technically जब नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस कैलकुलेट कर रहे हो उसमें मीटर्स परचेस लेना चाहिए कि मीटर्स कंज्यूम्ड लेना चाहिए? कंज्यूम. These 3 things which I have highlighted is to be copied. Next line, if you have copied this, write down therefore number of leather bags produced therefore number of leather bags
produced equal to 2000 divide by 2 or 1000 divided by 1. I hope you understand what is 2000 divided by 2 and 1000 divided by 1. That is equal to 1000 bags. Working note number 2, depreciation on machines. Simple calculation. यहाँ पे ओनली मिस्टेक दैट कैन बी कमिटेड इज इंटू 1/12 नहीं करते हैं बहुत जन. एंड वर्किंग नोट नंबर 3, write down apportionment of rent. What is the word that they've used? Apportionment. Apportionment का simple meaning is distribution. That is end of this question. Okay, take question number 6. Slightly unique question. As you can see, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन. ये क्वेश्चन का दो पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट
एंड सेकंड पार्ट. इफ यू रीड फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वेरी केयरफुली, इट इज वेरी सिमिलर टू आज ही जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज हम लोग ने एक्स लेके फाइंड आउट किया था एंड देन कॉस्ट शीट बनाना है. कॉस्ट शीट बनाने का टाइम नहीं मिलेगा तो इट इज योर होमवर्क. तो आज हम लोग वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज ढूंढ लेंगे, सेकंड पार्ट होमवर्क हो जाएगा. XYZ, a manufacturing firm, has revealed the following information for September 2019. Raw material का opening stock 2,42,000 and closing stock 2,92,000. Work in progress opening closing stock is also given. The firm incurred following expenses for a targeted production of 1 lakh units. So firm had targeted that it will produce how many units? 1 during the month. Consumable stores and spares of the factory 3,50,000. Research and development cost for the process 2,50,000. Quality control cost 2,00,000. Packing cost clearly mentioned secondary. Per unit of goods sold 2 rupees. Lease rent of production asset 2 lakhs. General administrative or administrative expenses general. Selling and distribution expenses, तो ये सब तुमको overheads दिया हुआ है. Next they have given opening stock of finished goods 0 clearly mentioned. Closing stock of finished goods is 5,000 units. Defective output is 4% of targeted production. What is meaning of defective output? हम जितनो scrap and defective is different. What is meaning of defective output? Scrap मतलब scrap मतलब भंगार, उसको फेंकना ही पड़ेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते. बट डिफेक्टिव्स कैन बी रेक्टिफाइड. तुम डिफेक्टिव बनाओगे ना, अभी फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कंपनीज ऐसे रहते हैं जिनका सेकंड्स का आउटलेट्स होता है. सेकंड्स का आउटलेट मतलब वहां पे वो डिफेक्टिव रहता है. मतलब एज अ कस्टमर अगर तुम वो प्रोडक्ट को देखोगे तो टू द नेकेड आई तुमको समझेगा नहीं कि वो डिफेक्टिव है. मतलब वो लोग का कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रहता है. अभी फॉर एग्जांपल शर्ट या ऐसा कुछ रहेगा तो कुछ थोड़ा सा भी स्टिचिंग में ऊपर नीचे आगे पीछे हो गया ना तो वो लोग उसको डिफेक्टिव में निकाल देते हैं, बोलते नहीं ये डिफेक्टिव है. तो एज अ कस्टमर हमको नहीं पता चलता कि ये डिफेक्टिव है. तो हम फैक्ट्री आउटलेट में जाते हैं, वो लोग बोले बाय 2 get 5. लेकिन नॉर्मल स्टोर में जाओ एक का भाव 4,000 रुपए रहेगा. तो वो लोग बोलते नहीं सही, ये क्या ना जूना स्टॉक है ना इसके लिए सस्ते में निकाल रहे हैं. बस 6 महीने बाद पता चलेगा इधर नीचे से छोटा सा ऐसा होल था तो डिफेक्टिव है. तो अगर रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस भी हैं इंस्टीट्यूट के जिसके अंदर लोग ने ऐसा डिफेक्टिव आउटपुट एंड देन कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन दिया. दैट कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन मतलब रेक्टिफाई करने के लिए तुमको खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो एनीवेज हमको इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हमको इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो डिफेक्टिव आउटपुट है रियलाइज 61. व्हाट इज मीनिंग ऑफ रियलाइज 61? दो इट इज डिफेक्टिव, हम उसको कितने में बेच रहे हैं? 61 में बेच रहे हैं. एंड लेट अस रीड फर्दर. In fact, you can read after 4 lines. They have given selling price is 110. Selling price 110 है. Defective 61 में बिक रहा है. मतलब 61 is actually more than 50% of a selling price. Scrap या भंगार रहेगा ना तो 5 रुपए में बिकेगा वो. मतलब स्क्रैप का तुम कुछ नहीं कर सकते, लिटरली तुमको फेंकना पड़ेगा. Anyways, closing stock is valued at cost of production. I told you कि कभी कभी वो लोग लिख के देंगे closing stock is valued at cost of production. If this was not given, we would have still valued closing stock at what? Cost of production. Anyways, read further. Cost of goods sold excluding administrative expenses amounted to 78,26,000. Today only we did one question, question number 3 that I'm talking about, जिसके अंदर भी cost of goods sold तुमको दिया था 56,000 if you remember. Direct employee cost is half of cost of materials consumed. So direct employee cost is half of cost of material consumed. Selling price is 110 per unit. You are required to calculate value of materials purchased and you are required to prepare cost sheet for the firm. My focus is only on the first part, that is calculation of value of materials purchased. First of all, अगर मैं तुमको एक question पूछूं, how many units are sold? फिनिश गुड्स, ऑफ कोर्स मैं फिनिश गुड्स के बारे में पूछ रहा हूं. हाउ मेनी यूनिट्स आर सोल्ड?
What was targeted production? 1 lakh. Are all the units good units? No. कितना परसेंट डिफेक्टिव निकलेगा उसमें? 4%. तो डिफेक्टिव को निकाल के कितना बचता है? 96,000. 96,000 is entire 96,000 sold? No. Why? Is there any opening stock? No. But is there any closing stock? कितना? तो कितना units are sold? ये चाहिए हमको. This is important. That is why I'm asking you. How many units are sold? Everybody agrees 91,000. Okay, write down. We are starting with point number 1. Write down calculation of value of materials purchased. Calculation of value of materials purchased. Now उसके अंदर हम लोग ABC 3 पॉइंट बनाएंगे. तो पहले लिखो A. Calculation of finished goods sold. ब्रैकेट में लिखो in units. ओके, ऐसा एक छोटा सा टेबल बनाओ. मैक्सिमम 4 to 5 लाइंस. पर्टिकुलर्स, यूनिट्स. पर्टिकुलर्स में लिखो टारगेटेड प्रोडक्शन. बोलो, टारगेटेड प्रोडक्शन इज हाउ मेनी यूनिट्स? 1 लाख. इसमें से हम पहले क्या माइनस करेंगे? डिफेक्टिव्स. सो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन लेस डिफेक्टिव. बोलो, डिफेक्टिव्स इज हाउ मच परसेंट? 4% ऑफ. तो 1 लाख इंटू 4%, दैट इज 4,000. ब्रैकेट में लिखो डोंट टोटल. बोलो, और एक चीज माइनस करेंगे तो हमको सोल्ड मिलेगा. वी हैव सब्ट्रैक्टेड, इफ यू रिमेंबर, व्हाट वाज दैट? सो लिखो लेस क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी. less closing stock quantity 5,000. okay, now total बोलो 91,000 के सामने क्या लिखेंगे? क्वांटिटी सोल्ड या फिनिश गुड्स क्वांटिटी सोल्ड? फिनिश गुड्स क्वांटिटी सोल्ड. What is formula for raw material consumed? Don't write. See here. Raw material consumed का formula क्या है? Opening stock of raw material plus raw material purchased minus closing stock of raw material. Do you agree? Do we have opening stock of raw material in the question? Yes. Do we have closing stock of raw material in the question? If we find out consumed, can we find out raw material purchased? अगर मेरे को consumed मिल गया तो ये इक्वेशन में consumed, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को सब्सटीट्यूट करके परचेज ढूंढ सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो मैं पॉइंट नंबर बी में हम ढूंढेंगे रॉ मटेरियल. सो राइट डाउन पॉइंट नंबर बी, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम. आज ही हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोग ने एक्स लेके कॉस्ट शीट बनाया था. डू यू रिमेंबर दैट? ओके, हम लोग सेम ज्ञान ये क्वेश्चन में यूज करेंगे. तो हम क्या बनाएंगे अभी?
बट नेक्स्ट लाइन में लिखो लेट raw materials consumed. See, you can write raw material or direct material consumed, one and the same thing. Let raw material consumed be rupees x. ध्यान से देखो यहां पे मैंने किसको x लिया है, raw material consumed. Read the question. There is one cost which is dependent on raw material consumed. Direct employee cost. Direct employee cost is what? Half of raw material consumed. Now you can argue, वो क्वेश्चन में आपने परचेस को एक्स लिया था, ये क्वेश्चन में आप कंज्यूम्ड को एक्स ले रहे हो, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लो परचेस को एक्स. अगर तुमने परचेस को एक्स लिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है फाइंड आउट करो. ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 2 लाख. हाँ, इसको तुम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, सॉरी 2 lakhs. ओके, इफ यू सॉल्व दिस हाउ मच यू विल गेट. ओपनिंग कितना है, ओके, क्लोजिंग कितना है, ओके, बोलो. तो अभी ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 50,000. बराबर है. ये क्या है x माइनस 50,000, रॉ मटेरियल. डायरेक्ट लेबर इसका हाफ है, बराबर है. तो इसका हाफ करोगे, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे, तो उससे अच्छा कंज्यूम्ड कोई एक्स ले लो, दैट इज इजियर. मैं नहीं बोल रहा हूं ये गलत है, बट ये तुम्हारा एफर्ट बढ़ा देगा. ले लो एक्स लेके, आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली मैथमेटिक्स है. तो इसका हाफ करोगे तो डायरेक्ट लेबर वो आएगा. अच्छा समझो, ये तुमने कॉस्ट शीट बनाने का चालू किया, कंज्यूम्ड है एक्स माइनस रॉ मटेरियल इज एक्स माइनस 50,000. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर ये है तो लेबर इज हाफ ऑफ दिस. अगर ब्रैकेट ओपन करके बताओ कितना आएगा, 0.5x माइनस 25,000. फिर तुम प्राइम कॉस्ट लिखोगे तो ये काम बढ़ते ही जाएगा. उससे अच्छा बेटर ये है किसको एक्स ले लो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा तो परचेज तो एक ही स्टेप में मिल जाएगा. ठीक है. एनीवेज, नाउ नेक्स्ट लाइन, इट इज गिवन दैट direct employee cost is half of cost of material consumed. Next line, therefore, direct employee cost is equal to half into x is equal to 0.5x. So I think this is better than taking ये. Sure. Now हम एक कॉस्ट शीट बनाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन 3 में बनाया था. तो राइट डाउन कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ September 2019. Cost sheet for the month of September 2019. Particulars rupees. Okay, now as you can see
यहाँ पे मैंने रुपीस कॉलम थोड़ा ज़्यादा वाइडर रखा है क्योंकि यहाँ पे रुपीस का जो अमाउंट है वो लैक्स में, लास्ट टाइम थाउजेंड्स में था। ये सब दिमाग एग्जाम के 3 घंटे में लगाना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन अगर 10 मार्क का है, फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू हैव अप्रोक्सीमेटली 18 minutes, इंक्लूडिंग रीडिंग द क्वेश्चन, इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन, ड्राइंग द फॉर्मेट एंड रिप्रेजेंटिंग द सोल्यूशन। और वो भी 2 बार कॉस्ट शीट बनाना है इसके अंदर। हाँ, तो चलो वी विल स्टार्ट विद व्हाट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने डायरेक्टली एक्स ले लिया है ना, तो राइट डाउन डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम एक्स। हमने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को ही एक्स ले लिया है ना। ओके, नेक्स्ट लाइन लिखो, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। Okay, just above this we have also calculated direct employee cost, which is how much? 0.5x. So x plus 0.5x कितना होता है? 1.5x। x स्क्वायर मत कर देना, हम लोग ने ये वेरीफाई भी नहीं किया कि देर इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस और नॉट, नहीं होगा। ठीक है, चलो एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, नाउ इस बार तुमको बहुत सारे कॉस्ट दिए हुए हैं, उसमें से तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। एनीबॉडी, व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स? मतलब कौन से कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स महंगे हैं? वन बाय वन आई विल आस्क। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री, विल इट बी फैक्ट्री ओवरहेड्स? यस, तो लिखो नेक्स्ट लाइन, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री। इनर कॉलम 3,50,000, इनर में लिखा है तो और भी कोई होगा। चलो, व्हाट इज नेक्स्ट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, इज दिस फैक्ट्री ओवरहेड्स? नो। सेकेंडरी पैकिंग? नो। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट? यस, लिखो लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट। is 2 lakh. Okay, we have taken factory overheads, दोनों का टोटल इज 5,50,000। बोलो, आउटर कॉलम हम टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा? 1.5x plus 5,50,000। I don't know whether you have this much big column. बोलो, इसको क्या आप बुलाएंगे? ग्रॉस लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? ग्रॉस कब लिखना चाहिए? तो वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है कि नहीं है? है। तो ये सब देख के चेक करके बोलो, पहले बोल देते हो बाद में चेक कर रहे हो। चलो फटाफट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या आएगा? एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो लिखो नेक्स्ट लाइन, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। लास्ट कॉलम, इट इज इंडिपेंडेंट आइटम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करना है। जस्ट पुट पर प्लस साइन सो दैट यू आर कंफर्टेबल while doing calculation। 1.5x को मत छेड़ो, आगे के अमाउंट का हिसाब लगाते जाओ। चलो लेस
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अमाउंट? 5 लाख. सी दैट इज वाई मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही सॉल्व करवाया. आई एम कंसिस्टेंटली यूजिंग सेम मेथड. आई एम नॉट चेंजिंग द मेथड एज पर द क्वेश्चन. नहीं तो तुम हमेशा सोचोगे ऐसा करने का कि ऐसा करने का. उधर इक्वेशन बनाया, इधर ऐसा, उधर उल्टा कॉस्ट शीट बनवाया, इधर नहीं कर रहे. तो जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो, फॉलो इट कंसिस्टेंटली. ऐसा अकाउंट्स भी बोलता है, कंसिस्टेंसी प्लस क्या. ओके, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी कॉल्ड एज? फैक्ट्री कॉस्ट. अच्छा, ये क्वेश्चन को शांति नहीं है, इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो सब भी डाल के दिया हुआ है. तो देखो, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या आएगा? एड क्वालिटी. जो क्वेश्चन में दिया ना वही लिख दो. क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, वो लोग ने भी यही लिखा है. क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट 2 lakhs, आउटर कॉलम. डोंट टोटल आउटर कॉलम, घड़ी घड़ी टोटल नहीं करने. बोलो, आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट व्हाट इज नेक्स्ट? हाँ, तो यही कॉपी करो. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर द प्रोसेस. $250,000. बोलो, उसके बाद क्या आता है? आफ्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट विच इज द नेक्स्ट administrative overheads but related to production. Is it or is there any administrative overheads related to production? No. Administrative expenses जो दिया है वो क्या है? वो जनरल, वो तो नीचे आएगा. चलो नेक्स्ट. डू वी हैव सेल ऑफ स्क्रैप बाई प्रोडक्ट सेकेंड्स? अरे नो, क्या है ना वो डिफेक्टिव आउटपुट, वो सेकेंड्स ही हुआ ना. आई यूज द वर्ड सेकेंड्स. सेकेंड्स का शोरूम रहता है, तो ये जो डिफेक्टिव आउटपुट है इज एज गुड एज सेल ऑफ व्हाट? सेकेंड्स. तो ये लेस ऐड करेंगे कि लेस करें? रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट. रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट. ये इधर लेस नहीं करोगे तो कहां लोगे? ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखो. अच्छा, डिफेक्टिव यूनिट्स हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. हाउ मेनी डिफेक्टिव यूनिट्स? इनटू 61 पर यूनिट. 2,44,000. Do we have primary packing? पैकिंग कॉस्ट जो दिया है वो है क्या? सेकेंडरी. ओके, चलो 1.5x को मत छेड़ो. ये सब का अमाउंट का टोटल बताओ. 4,56,000. इसका नाम रखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आता है? क्लोजिंग, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. डू वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? इज इट स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन? यस, बोला है ना. क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नील. नील और क्वेश्चन मार्क में फर्क है. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, डू वी हैव क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? यस. कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5,000 दिख रहा है, तो इधर से 5,000 माइनस कर डालते हैं. नहीं, क्यों? वो यूनिट्स है, तो यहां पे क्या चाहिए हमको? रुपीस वैल्यू चाहिए. तो वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमने ढूंढा था ना लास्ट क्वेश्चन में. तो उसके लिए तो कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा. कॉस्ट शीट बनाने के लिए तो हमको क्या चाहिए? एक्स चाहिए. तो बताओ अभी कैसे करने का.
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या दिया 78,26,000 इधर है 78,26,000 और तूने पहले वर्क में कैलकुलेट किया कितना सोल्ड कितने के 91 तो कितना है 86 पर यूनिट अगर ओपनिंग स्टॉक 0 है तो तीनों पर यूनिट सेम है क्लोजिंग स्टॉक भी बोल देता ना हमने देखो See, if you subtract closing stock of finished, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स तुमने subtract किया, subtract करने के बाद क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है. व्हाट इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज जीरो? ओपनिंग स्टॉक नहीं है. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. ठीक है, इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन इन द क्वेश्चन. हम लोग क्या करते हैं? सीओपी माइनस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो क्या मिलता है? ओके, cost of goods sold is given in the question. How much is cost of goods sold given in the question? 78,26,000. Do you remember we had find out how many units are sold? How many units are sold? 91,000. Okay, how many units are in closing stock? 5,000. यहाँ पे हमने यूनिट्स का कॉलम नहीं बनाया, लेकिन अभी मैं जस्ट दिखा रहा हूं. तो ये कितना यूनिट्स का होगा? 96,000. यहां पे जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने यूनिट्स का होगा? 96. 1 लाख यूनिट्स का नहीं होगा, क्योंकि 4,000 तो हमने डिफेक्टिव करके बेच दिया. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये सिचुएशन है. इसमें मुझे क्या ढूंढना है? सी, अगर हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें तुम फीफो फॉलो करो या वेटेड एवरेज, डजंट मैटर, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? ओपनिंग स्टॉक. ये अभी अभी हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में ही किया, वो बैग्स वाले क्वेश्चन में. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, बैग्स वाला क्वेश्चन दिख रहा है. ये 100 बैग्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इसमें से बचा था. इसका पर यूनिट इज 632.5. तो ये 100 बैग्स का भी 632.5 सॉरी 632.75 आएगा. लेकिन ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास क्या नहीं है? अरे ओपनिंग स्टॉक नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लिए वरदान है. ये ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लिए वरदान है. ओपनिंग स्टॉक होता ना तो सर फोड़ना पड़ता था. यहां पे क्या नहीं है? ओपनिंग स्टॉक. दैट इज गुड न्यूज. अब मेरे को ये बताओ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे पास नहीं है, बराबर है? क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता तो मैं क्या करता? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 96,000, जो भी पर यूनिट आता वही मैं क्लोजिंग स्टॉक का पर यूनिट ले लेता. बराबर है? एक क्वेश्चन का आंसर दो. सपोज मेरे पास ये नहीं है, सपोज मेरे पास ये भी नहीं है, तो मेरे पास ये नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा. बराबर है? लेकिन मेरे पास ये है, ये भी है, तो पर यूनिट आ गया. तो ये दोनों भी सेम ही होगा ना? नहीं समझ में आया? अरे ये 900 इसमें से ही है, ये 100 भी इसमें से ही है. तो ये 900 का जो कॉस्ट है, तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कर लो, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा. दिस इज बिकॉज व्हाट इज नॉट देयर? ओपनिंग स्टॉक. तो ये हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक होता तो
मत पूछो मेरे को। चलो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 78,26,000 डिवाइडेड बाय 91,000 यूनिट्स into 5,000 यूनिट्स। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग पर यूनिट और वो सब बड़ा लेंदी प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग। बोलो कितना आएगा? 4,30,000 माइनस होगा so we are left with what? 1.5x plus 26,000. This is cost of goods. हम लोग बी पॉइंट में हैं अभी तक, और अभी तक हमको x का वैल्यू नहीं मिला है। नाउ इट्स वेरी सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन और क्वेश्चन 3। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी नो 78,56,000, जिसको हम इक्वेट करेंगे, सॉरी 78,26,000, इसको हम ये 1.5x प्लस 26,000 के साथ इक्वेट करेंगे तो x मिलेगा। बट वी डोंट वांट x, व्हाट वी वांट इज रॉ मटेरियल परचेस्ड। x इज व्हाट वी हैव अज्यूम्ड x टू बी कंज्यूम्ड। तो लिखो, पहले लिखो ये कॉस्ट शीट के नीचे, कॉस्ट शीट खत्म हो चुका है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 78,26,000 ब्रैकेट में गिवन। Cost of goods sold is equal to 78,26,000 bracket में given. Next line, therefore 1.5x plus 20 is equal to 78,26,000. चलो find x. Therefore बोलो, what is the value of x? 52. But what is x? Raw materials consumed. देखो, therefore raw material consumed equal to rupees 52 lakhs. पॉइंट नंबर सी मैं जाके लिखूं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल्स परचेज्ड। Calculation of value of materials purchased. ओके, कैन यू टेल मी, उसका एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। मेरे पास कंज्यूम्ड है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो रॉ मटेरियल परचेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी विल स्टार्ट विथ व्हाट? रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये माइनस क्लोजिंग स्टॉक वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? और ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो एक छोटा टेबल बनाओ, पर्टिकुलर रुपीस। इक्वेशन फॉर्म में मत लिखो, ये सब गंदा लगता है, बचपन में अच्छा लगता है। टेबल बनाओ, पर्टिकुलर्स रुपीस लिखो, पर्टिकुलर्स कॉलम में रॉ मटेरियल कंज्यूम 52 lakhs रुपीस कॉलम में। बोलो इसमें कौन सा स्टॉक ऐड करेंगे, कौन सा स्टॉक लेस करेंगे? ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उल्टा करना है ना, पहले हम लेस करते थे, अभी इसको ऐड करना है, क्योंकि कंज्यूम से चालू किया। परचेस में हम क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं, कंज्यूम में हम ऐड बैक कर रहे हैं। ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,92,000।
And next line, immediately next line, no need to total. Less opening stock of raw material. Less opening stock of raw material 2,42,000. 2,42,000 should be in bracket. इसका total करो. I think you should get 52,50,000. 52,50,000 के सामने लिखो raw materials purchased. Okay, just last 1 minute. Second part is your homework. वो होमवर्क में तुम क्या बनाएंगे? कॉस्ट शीट. 2 क्वेश्चंस मेरे को पूछना है. फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होगा? नो नो, 3 ही कॉलम, पर्टिकुलर्स, रुपीस रुपीस. आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू तो तुम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके. अब तुमको पर यूनिट ने वो सब करके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्यों ढूंढना है? तो पर्टिकुलर्स, रुपीस रुपीस. पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट शीट स्टार्ट कैसे करोगे? मतलब पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसका अमाउंट डायरेक्टली नहीं लिखोगे, वो पूरा लिखना पड़ेगा. और यहां तक तो एज इट इज आएंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंचोगे तो कितना मिलेगा? 78,26,000. फिर उसके नीचे ऐड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा. सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया है, चेक करके मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितना है. 110 विल बी मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी यूनिट्स? 91,000. तो सेल्स मिलेगा. प्रॉफिट विल बी बैलेंसिंग फिगर. कॉस्ट शीट बनेगा तुम्हारे से. नहीं बनेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में 6:45 के बाद इधर बैठ के हम लोग बनेंगे. ठीक है.